So, very good evening, all the participants. Today, we'll be starting with part 4. Now, part 4 is very peculiar. Part 4 is peculiar in the sense that out of the code, they can ask you questions worth 10 marks. So, 10 marks are reserved for code and regulations. And out of that, they may ask you questions on part 4. And second is the case study. There is a case study on professional ethics. So professional ethics is also a topic which has to be covered. So we will be discussing this part 4 in 2 parts. In one session, we will be discussing the case studies on professional ethics, and in the second part, we will study the remaining regulations, particularly regarding IP, IPA, IPE, IU, board, etc. etc. I have already shared one chart with you, and I think I will also share with you a playlist which contains this part 4 in detail. And if you want, I think we have developed some tests also, online tests also on part 4. So that also you can do. That much is required. So now let me share this IBC charts. So I hope it is visible on your screen. So what is So there are various sheets in this chart, and this chart has been prepared by a student only. So it contains the complete IBC. If you see, there are various sheets. It is all editable. It is in Excel. So you can make your own pluses and minuses. So what it says? First of all, who can become an insolvency professional? So what you have to do? What you have to do to become an insolvency professional? First of all, you need to clear this examination. That is the first step. Then within 12 months of the date of application, you have to apply to the board for registration. And there is a consolidated form these days. There is only one form. सर अभी 24 months हो गया ना सर? हाँ जी, अभी 24 months हो गया सर. क्या 24 months? रजिस्ट्रेशन विद IBBI सर. नहीं नहीं नहीं, वो देखो ऐसा है, आपको सिलेबस के हिसाब से चलना है. सिलेबस का कट ऑफ डेट आपका कितना है? 4 फरवरी है. यस सर. तो 4 फरवरी में तो 24 मंथ्स नहीं है. हाँ ठीक है, ओके सर, ओके ओके, है ना? हाँ यस सर. हमें क्या है, देखो हमें ना, वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स. यस सर, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. ओके सर, या है ना? हाँ, तो वी हैव टू बी क्लियर कि भाई हमें क्या पढ़ना है उस हिसाब से. इसीलिए मैंने तो आपको जो लेटेस्ट कोड एंड रेगुलेशंस आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय वेबसाइट आल्सो. है ना? तो अब मेरी वेबसाइट पर भी वो सारा अपलोडेड है, ड्यूली लिंक्ड है. एंड आई थिंक दैट इज द, यू कैन करेक्ट मी ऑल्सो जहां पर लगे, बट मुझे लगता है कि 12 मंथ्स है ना. 24 मंथ्स में भी दी लेटेस्ट वन विच इज नॉट इन योर सिलेबस. है ना? हाँ. तो रेगुलेशन सेक्शन 5(7) for IP. You need to clear the examination, and within 12 months, you have to apply for registration. There are 2 terms which are used for this. One is enrollment, another is registration. You have to enroll yourself with an IPA, and there are 3 IPAs which you all know. है ना? 3 IPA हैं. तीनों जितने भी इंस्टीट्यूट है हमारे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, इनकी तीनों की IPA है. You can register with, you can enroll with either of these, and you can migrate also from one to another. है ना? You have to take NOC from both. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है भाई, आप जैसे सपोज यू वांट टू डू योर ग्रेजुएशन. आप ग्रेजुएशन करने के लिए क्या करते हो? यू गेट एनरोल्ड इन अ कॉलेज, यू आर अलॉटेड रोल नंबर ऑल्सो. है ना? तो ये कॉलेज हो गया. कॉलेज कौन सा हो गया? IPA. IPA can regulate your conduct. And then there is university. That college is attached with some university. So similarly, these IPAs also are in turn, they get themselves registered with IBBI. है ना? और IBBI को कौन करता है? IBBI जो है, it has this been established by way of a notification by the central government. है ना?
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईबीबीआई बनाया। आईबीबीआई कौन है? आईबीबीआई इन सबको रेगुलेट करता है, आईपी को भी, आईपीए को भी, आईपीई को भी और आईयू को भी। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, ये एग्जाम क्लियर करना है, 12 months यू हैव टू अप्लाई एंड डेफिनेटली देयर इज अ फीस। सबसे पहले कि अब इसमें ना देर आर टू कॉन्सेप्ट्स। कौन सी कॉन्सेप्ट्स है? देखो यहाँ कई जगह लिखा होगा आपके पास एप्लीकेशन फीस, और कई जगह लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फीस या प्रोसेसिंग फीस। अगर एप्लीकेशन फीस प्रोसेसिंग फी लिखा है। है तो दैट इज द फीस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन। प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन मीन्स सपोज योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, देन इट इज नॉट रिफंडेबल। ठीक है? तो आपको कहां अप्लाई करना है? फॉर्म ए के अंदर। आप एक बार रेगुलेशन खोल लीजिएगा, आईपी रेगुलेशंस खोल लीजिएगा। हाँ जी, आईपी रेगुलेशन से एक बार चेक भी करते चलेंगे इसको कि आईपी रेगुलेशंस में है क्या ये। तो फॉर्म ए में आपको अप्लाई करना है, नॉन रिफंडेबल फीस है 20,000 की। और बोर्ड जो है, बोर्ड विल ग्रांट यू रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म बी विद इन 60 days ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन, एंड देन यू हैव टू पे बोर्ड ए फीस ऑफ 20,000 एवरी 5 years ऑन और बिफोर 30th अप्रैल। ठीक है? देखो ये समरी में है, बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत इसमें नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहां कवर किया हुआ है, इतना आप जरूर पढ़िएगा। और अगर आपको पूरा पढ़ना है तो हमने तो पूरा आपको बेयर कोड दे ही रखा है, रेगुलेशंस दे रखे हैं, है ना? तो देर आर मोर देन आई थिंक बहुत सारे उसमें वो है, मे बी अराउंड 1,000 पेजेस, है कि नहीं? अब आपकी चॉइस है कि भाई आपने 1,000 पेजेस पढ़ने हैं या ये 3-4 चार्ट से आपका काम चल जाएगा, है ना? इतना तो मिनिमम पढ़ ही लीजिए, बाकी आपका इंटरेस्ट है उसमें देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद में अनदर कॉन्सेप्ट इज ऑफ, अच्छा अगर मान लो रिजेक्ट होगा, तो रिजेक्ट होने के क्या केस में क्या होगा? सपोज यू अप्लाइड टू एन आईपी एंड बोर्ड थ्रू ए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एंड दे वांट कि भाई ठीक है, आपको अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करने की क्या, बोर्ड में रिजेक्ट एंड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड एंड आईपी नीड्स टू रिवर्ट विद इन 15 days ऑफ सच कम्युनिकेशन। ये रेगुलेशन नंबर 8 है हमारा। ठीक है? रेगुलेशन 7 है, क्या बोलता है? ये ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट की बात करता है। दिस इज समथिंग सिमिलर टू सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है? ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या है कि अभी क्या हो गया कि सपोज यू आर इन जॉब, एनीबडी कैन दिस अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, यू कैन पास द एग्जामिनेशन, यू कैन टेक एनरोलमेंट, है ना, यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि बिकॉज फॉर अप्लाइंग फॉर एएफए यू नीड टू लीव योर जॉब। ठीक है भाई, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तो तभी अप्लाई करोगे ना आप, अगर आप जॉब में नहीं हो तो जॉब के साथ तो प्रैक्टिस हो नहीं सकती, है ना? अगर आपका कोई पेरेंट प्रोफेशन है उसके साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे सीए, सीएस, एडवोकेट वगैरह जो भी है आपका, है ना? तो एएफए के लिए क्या है, ये इन्होंने चेंज लाए आफ्टर 31st December, दैट यू कैन नॉट टेक एन असाइनमेंट अनलेस यू होल्ड ए वैलिड ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट। ठीक है? नाउ there is a provision for temporary surrender also. So what is this temporary surrender? So IPA to inform the board, ठीक है, whenever it issues, it renews an AFA, it suspends or cancel the AFA। जैसे आप अगर आप मान लो कॉलेज में, आपने कॉलेज से आपने मान लो कॉलेज से निकलना हो तो क्या करोगे आप? कॉलेज को अप्लाई करोगे, है ना? और कॉलेज क्या करेगा? बोर्ड को इन्फॉर्म कर देगा। तो ऐसा ही यहाँ प्रोसीजर, इस तरह से समझ समझ के आपको पढ़ना है ना? IP to inform the board whenever it issues, renews an AFA or suspends or cancels the AFA. Yeah, revoking the suspension of AFA, accepting surrender of AFA within 1 working day of taking such action। ठीक है? तो 1 वर्किंग डे के अंदर आपको ये बताना। रेगुलेशन नंबर 11 क्या बोलता है? शो कॉज नोटिस। ठीक है? तो शो कॉज नोटिस कहां पर, अगर आईपी को कोई शो कॉज नोटिस देना है तो कहां पर जाएगा? शो कॉज नोटिस हैज टू बी सर्व्ड एट द आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड बाय हिम और आईपीए थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट विद एन एक्नॉलेजमेंट। ठीक है? या फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मींस,
at the email address provided by the IPA to the board, and board to constitute disciplinary committee to dispose of the show cause notice. ठीक है, और disciplinary committee to dispose of the show cause notice within 6 months of the receipt. An order shall not become effective until 30 days have elapsed from the date of issue of such order by the disciplinary committee. An order to be issued to the IPA immediately and published on the website of the board and to the IPA immediately. ठीक है, उसके बाद में अगर मान लीजिए आईपीए को अप्लाई करना है, ये तो हमारा हो गया आईपी से रिलेटेड। अब सेक्शन 201 क्या बोलता है? सेक्शन 201 बोलता है कि आईपीए जो है, आईपीए को भी तो अपना रजिस्ट्रेशन लेना है, जैसे कॉलेज भी तो एफिलिएट होगा ना। मान लो कोई नया कॉलेज खुलता है, अब आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि भाई 3 आईपीए हैं, 3 के अलावा कोई और भी आ सकती है क्या? इज इट अलाउड या नहीं अलाउड है? क्या कहना है आपका? Allowed, sir. Allowed है, yes. So they may theoretically anybody can apply for registration. Formalities है, फॉर्मेलिटी पूरी करो, ले लो रजिस्ट्रेशन एज आईपी, and board will acknowledge the application within 7 days. Eligibility for registration क्या है? Eligibility इसके लिए ये है कि it has to be a company under section 8 of the Companies Act. ये जो IPA होगा, ये होगा कंपनी अंडर सेक्शन 8. सेक्शन 8 कंपनी ही IPA बन सकती है, ठीक है। एंड द सोल पर्पस शुड बी टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ IPA, and it should have its bylaws and governance structure as per the board. ठीक है, मिनिमम नेटवर्थ 10 करोड़ है और पेड अप कैपिटल 5 करोड़। It should not be under the control of person resident outside India. Not more than 49% of its share capital should be held directly or indirectly by persons resident outside India. It should not be a subsidiary of a corporate body through more than one layer. ठीक है, and applicant, promoters, directors, shareholders are fit and proper person. ये conditions. ठीक, So what is corporate body? Not more than one layer, sir. हाँ, एक्चुअली क्या बोलता है, समटाइम्स देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग। ठीक है, कि भाई इन ऑर्डर दैट द रियल ओनरशिप इज नॉट अपेरेंटली विजिबल, है ना। कंपनीज फॉर्म ए वेब ऑफ कंपनीज, होता है ना। प्रोमोटर्स Yes. क्या करते हैं? Yes, sir. प्रोमोटर एक कंपनी बनाते हैं, उसको उसमें शेयर होल्डर दूसरी कंपनी को बना देते हैं, फिर तीसरी, इस तरह से। तो यहां पर क्या कहता है कि मोर देन वन लेयर नहीं हो सकती, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे कि हु इज द रियल ओनर, हु इज बिहाइंड दिस आईपीए। Oh, right, sir. दैट इज द कॉन्सेप्ट, है ना भाई। कंपनीज एक्ट में तो जितनी मर्जी लेयरिंग हो सकती है, वहां कोई बार तो है नहीं ना कि कंपनी कैन होल्ड शेयर्स इन अदर कंपनी। तो इन ऑर्डर टू जस्ट प्रोटेक्ट द रियल प्रोमोटर्स फ्रॉम पब्लिक आई, वो क्या करते हैं, बहुत सारी लेयर्स क्रिएट कर देते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि मोर देन वन लेयर से नहीं हो सकती, ठीक है। और फिट एंड प्रॉपर क्या है? फिट एंड प्रॉपर का मतलब ये है इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू इंटेग्रिटी, रेपुटेशन, कैरेक्टर, absence of conviction, and there should not be any restraint order. Competence include financial solvency and net worth. ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद में ये जो आईपीए है, नो पर्सन इन दिस आईपीए should jointly or individually, directly or indirectly hold more than 5% of its paid up capital or voting power of IPA. एक आदमी के पास 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। And you have to seek prior permission of the board in case a person wants to hold more than 10% of the share capital other than statutory body. So if there is a person which is other than the statutory body and it seeks to hold more than 10%, then it has to seek prior approval of the board. फिर होल्डिंग के ऊपर कुछ अलग रिस्ट्रिक्शंस भी, इसके ऊपर कई बार सवाल भी पूछ लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि नो पर्सन जॉइंटली और इंडिविजुअली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शुड होल्ड मोर देन 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द आईपी, लेकिन कुछ कंडीशंस में 15% तक है। कौन कौन 15% तक कर सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और कुछ जो है वो 100% तक होल्ड कर सकते। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी रेगुलेटर, ठीक है। तो इस तरह से इसके ऊपर कभी कभी सवाल भी पूछ लेते।
गवर्निंग बोर्ड क्या है? गवर्निंग बोर्ड में यह है कि मोर देन 50% ऑफ द डायरेक्टर्स शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है, एंड मिनिमम वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कन्वीन ए मीटिंग. Independent director shall be the chairperson of the board, and more than half the persons shall be persons resident in India, and it should not or not more than one fourth shall be insolvency professionals. ये गवर्निंग बोर्ड की कॉन्सेप्ट है यहाँ कि जो आईपीए है इसका एक गवर्निंग बोर्ड बनेगा. गवर्निंग बोर्ड में क्या क्या होगा कि मोर देन 50% ऑफ द डायरेक्टर्स शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द मीटिंग. और ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ये होगा चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड. बोर्ड का मतलब यहाँ गवर्निंग बोर्ड है, ठीक है. एंड मोर देन हाफ द पर्सन शैल बी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, एंड नॉट मोर देन वन फोर्थ शैल बी आईपी. मतलब ये वो चाहते हैं कि एक ना होलिस्टिक व्यू होना चाहिए. सारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को भर देंगे तो कोई फायदा नहीं है. तो आईपीए में क्या कहते हैं, वन फोर्थ से ज्यादा आईपी नहीं होने चाहिए गवर्निंग बोर्ड में, ठीक है. उसके बाद में आता है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ आईपीए. तो उसके लिए क्या है, आपके लिए यहां पर फॉर्म ए है और नॉन रिफंडेबल फीस है 10 लाख, और रिन्यूअल के लिए 5 लाख अलॉन्ग विथ फॉर्म ए. और आपको क्या सबमिट करना है, यू नीड टू सबमिट 3 years ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल, ठीक है, ऑफ एप्लीकेंट, प्रमोटर कंपनी एंड कंपनी हु इज इन कंट्रोल ऑफ द एप्लीकेंट, कंपनी होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है. तो ये आपको रिक्वायरमेंट है इसके. ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर इफ आईबीबीआई इज सेटिस्फाइड दैट आईपीए इज complying with all the conditions for registration, so it may grant the certificate of registration or renewal in form B, ठीक है. क्या होना चाहिए, इट शुड बी एलिजिबल अंडर रेगुलेशन 3. रेगुलेशन 3 हमने पढ़ लिया, ठीक है. इट हैज एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट हैज इन इट्स एम्प्लॉयमेंट पर्सन्स हैविंग प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, एंड इट हैज कंप्लाइड विद रेगुलेशन 4, ठीक है. तो रेगुलेशन 3 और रेगुलेशन 4 हम अभी अभी पढ़ करके ही आए हैं, ठीक है, ऊपर ही दिए हुए. चलिए, उसके बाद में अगर मान लो रिजेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो बोर्ड शैल कम्युनिकेट अबाउट एप्लीकेशन रिजेक्शन विद इन 45 days ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, एंड आईपीए टू एड्रेस विद इन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ सच कम्युनिकेशन, एंड बोर्ड नीड्स टू रिवर्ट अबाउट फाइनल डिसीजन विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द आईपीए. ये प्रोविजन आईपी से मिलते जुलते हैं, आईपी में भी यही है, इसमें भी यही. सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर मान लो कोई आईपीए अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करना चाहती है तो क्या होगा, उसके लिए बोर्ड शेल पब्लिश द सरेंडर नोटिस ऑन इट्स वेबसाइट विद इन 7 days एंड इनवाइट ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द इंटरेस्टेड पार्टीज, ठीक है. ऑब्जेक्शंस हैव टू बी सबमिटेड विद इन 14 days ऑफ सच पब्लिकेशन, एंड बोर्ड नीड्स टू अप्रूव एप्लीकेशन बाय आईपीए विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ ऑब्जेक्शंस, एंड बोर्ड शेल पब्लिश ऑन इट्स वेबसाइट दैट the registration has been surrendered for the said IPA, ठीक. Then disciplinary proceedings against IPA. अगर IPA के अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करनी तो ये भी नेचुरली बोर्ड ही करेगा, है ना. तो शो कॉज नोटिस टू बी सर्व्ड एट IPA रजिस्टर्ड ऑफिस थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट और through electronic means at the email address provided by the IPA to the board, and board to constitute disciplinary committee to dispose of the show cause notice, ठीक है. Disciplinary committee to dispose of the show cause notice within 6 months of its receipt, and order shall not become effective until 30 days have elapsed from the date of issue of such order by the disciplinary committee. तो 30 days आपको अपील के लिए टाइम दिया ना. An order to be issued to IPA immediately and published on the website of the board. Only whole time member of the board can pass this order. अपील आपको अगर करनी है तो आईपीए का मान लो सर्टिफिकेट अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो आप क्या करते हो, NCLAT में अपील करते हो, ठीक है. और अगर आईपी का होता है तो मेंबरशिप कमेटी है, वहां करते हो, नहीं तो फिर लोग हाई कोर्ट में जाते हैं थ्रू रिट. उसके अलावा देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रांट इन प्रिंसिपल अप्रूवल, कि आपने आईपीए अभी बनाई नहीं है बट यू इंटेंड टू फॉर्म एन आईपीए, तो क्या होता है कि द बोर्ड कैन ग्रांट यू इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑल्सो, ठीक है.
तो आपको कैसे अप्लाई करना है? विद नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 10 lakhs. And if board is satisfied that the applicant is a fit and proper person, then proposed company may meet all requirement and may grant for a period of 1 year. तो 1 साल के लिए आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाएगा, उसके अंदर आप फॉर्म कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपने अपने बायलॉज को अमेंड करना है तो क्या होगा? तो बायलॉज, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि मॉडल बायलॉज आईबीबीआई ने बना रखे हैं, जो कि हर एक आईपीए को जो भी अपने बायलॉज बनाएंगे दैट हैज टू बी इन कंसोनेंस विद दोज बायलॉज, उसी बायलॉज के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है। एंड बायलॉज ऑफ द आईपीए कैन बी अमेंडेड विद अप्रूवल ऑफ 75%। ठीक है, जो भी 75% है उसके से ये जो है हो सकता है, अमेंड हो सकता है। एंड रेजोल्यूशन टू बी फाइल्ड विद द बोर्ड विद इन 7 days ऑफ इट्स अप्रूवल। ठीक है। अमेंडमेंट शेल कम इनटू इफेक्ट ऑन 7th day of the receipt of approval, and you need to file the amended bylaws in printed form to the board within 15 days from the effective date. ठीक है, ये प्रोसीजर। तो जो अमेंडमेंट है बायलॉज की, इट कैन बी डन विद 3 times वोट इन फेवर एज इन अगेंस्ट, मतलब 3/4 majority मीन 75%। ठीक है। अब हमने क्या किया देखो, बड़ी जल्दी जल्दी हमने इस चीज को पढ़ लिया। अब इसमें वो पूछेगा क्या क्या? एक तो वो पूछ सकता है फीस, कि भैया फीस कौन सी है, फॉर्म कौन सा है ना? फीस और फॉर्म के ऊपर थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कि अमेंडमेंट के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, तो 75% चाहिए। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, कोई थोड़ा 1-2 बार पढ़ लेंगे ना तो याद आराम से हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा आप ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है इसको क्या करना है, एक फीस भी देनी है। किसको? बोर्ड को। एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द प्रोफेशनल फीस अर्नड। वर्ड क्या लिखा है? अर्नड। ठीक है। इन फॉर्म ई फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन और बिफोर 30th April, and you have to keep the records for minimum 3 years. You cannot surrender service unless the partner or director of the IP if he is not a citizen of India. तो कई बहुत सारे लोग जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, तो देन इन दैट केस यू हैव टू बी ए पार्टनर और ए डायरेक्टर ऑफ एन आईपीई, तभी आप सर्विसेज रेंडर कर सकते। ठीक है। ये रिजेक्शन के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। आईपी का और आईपीए का दोनों का सेम प्रोसीजर है। देखो बोर्ड जो है, बोर्ड के पास 60 days का टाइम, और अगर उसको रिजेक्ट करना है तो वो क्या करेगा? कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन नीड्स टू बी मेड विद इन 45 days, and they will give you opportunity of being heard, and after hearing the IP then need to take final decision within 30 days of hearing। ठीक। शो कॉज नोटिस का हमने पढ़ ही लिया। फिट एंड प्रॉपर पर्सन हमने पढ़ लिया, है ना? और अगर आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है तो देन यू नीड टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल 6 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। और आईपीए के लिए क्या है? अगर कोई डिले होता है तो फीस में तो आपको सिंपल इंटरेस्ट देना है एट द रेट ऑफ 12%। एंड आईपीए नीड टू सीक बोर्ड अप्रूवल व्हेन ए पर्सन अदर देन स्टैट्यूटरी बॉडी सीक्स टू होल्ड मोर देन 10% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ द शेयर कैपिटल। ये डिसिप्लिनरी कमेटी का प्रोविजन हमने पढ़ ही लिया। ठीक है। तो हमने आईपी और आईपीए से रिलेटेड प्रोविजंस बहुत सारे पढ़ लिए। अब हम चलते हैं इधर आईयू के ऊपर, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। हमने आईपीए में क्या पढ़ा था? हमने आईपीए में पढ़ा था कि इट्स हैड टू बी ए सेक्शन 8 कंपनी, और यहां पर क्या है? यहां पर कुछ अलग रिक्वायरमेंट है। क्या कहता है? इट हैज टू बी ए पब्लिक कंपनी। आईयू, आईयू में क्या है? नो पर्सन टू फंक्शन एज आईयू विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय बोर्ड एंड बायलॉज इन कंसिस्टेंस विद द बोर्ड बायलॉज। बोर्ड ने बायलॉज बना रखे हैं, उसके हिसाब से ही आपको अपने बायलॉज बनाने हैं। कंपनी हैज टू बी ए पब्लिक कंपनी। आईपीए सेक्शन 8 कंपनी है और आईयू क्या है? पब्लिक कंपनी। इट्स सोल पर्पस शुड बी टू प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज अंडर द रेगुलेशंस।
यहाँ मिनिमम नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम नेटवर्थ पे सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो इतना तो ध्यान होना ही चाहिए कि मिनिमम नेटवर्थ इसके अंदर 50 करोड़। ठीक है, और वहां पर कितना था, वहां नेटवर्थ है 10 करोड़ और पेड अप कैपिटल है 5 करोड़ आईपीए में, और यहाँ पर है मिनिमम नेटवर्थ आपकी 50 करोड़। इट शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, एंड नॉट मोर देन 49% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। और देखो, हमने ना दोनों को साइड बाय साइड लिखा हुआ है। इससे क्या हो रहा है कि आप यहाँ इसको पढ़ लो आईपीए को, और इधर पढ़ लो इसका आईयू वाला, तो काफी चीजें सेम है। जहां डिफरेंस है थोड़ा सा ध्यान दे दो कि भाई यहाँ पर ये डिफरेंट है ना। जैसे 49% वाली क्लॉज सेम है, उसमें भी वही है, आईपीए में भी और आईयू में भी। नॉट मोर देन 49% ऑफ शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर शुड बी हेल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और एप्लीकेंट, प्रोमोटर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स आर फिट एंड प्रॉपर पर्सन। No person jointly or individually, directly or indirectly can hold more than 10% of the share capital or voting power of the IU। अब वहां पर जैसे 15% का क्राइटेरिया था, है ना, 15% था ना आईपीए में, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। यहां पर कितना है, 25%। कुछ डिफरेंस भी है। 25% कौन कौन होल्ड कर सकती है, गवर्नमेंट कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एंड फॉलोइंग कैन होल्ड अप टू 100%, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी रेगुलेटर। गवर्निंग बोर्ड में क्या है कि मोर देन 50% ऑफ द डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिनिमम वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू डू द मीटिंग, एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड मतलब यहाँ गवर्निंग बोर्ड है। ठीक है, और अप्लाई करने के लिए आपको यू हैव टू अप्लाई टू द बोर्ड इन फॉर्म ए विद ए नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ, ये एक बार ना फीस चेक कर लीजिएगा। हाँ, तो यहां पर आपको फॉर्म ए में अप्लाई करना है विद ए नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 10 lakhs, एंड दिस इज फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज वेल एज रिन्यूअल, और एनुअल फीस है फिर आपकी 10% ऑफ टर्नओवर। ये तो आप देखो, ये एप्लीकेशन फीस है, ये रजिस्ट्रेशन वाली फीस नहीं, वो अलग है फिर। ठीक है, एंड बोर्ड विल ग्रांट यू रजिस्ट्रेशन विद इन 60 days ऑफ द एप्लीकेशन इन फॉर्म बी, एंड देन यू नीड टू पे रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल फीस ऑफ 1 करोड़। तो आयु के केस में 1 करोड़ की फीस की पेमेंट है विद इन 15 days ऑफ द इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर मान लो रिफ्यूज हो गया तो वो जो 10 लाख है वो गए आपके, है ना, वो नॉन रिफंडेबल फीस है, वो एक किस्म से प्रोसेसिंग फीस है। और अगर रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है तो फिर आपको 1 करोड़ देना है विद इन 15 days ऑफ द इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या रिन्यू। सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 5 years फ्रॉम द रेट ऑफ इशू, और डिले अगर होगा तो सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। अगर बोर्ड रिजेक्ट करना चाहता है आयु की एप्लीकेशन तो it has to communicate within 45 days. IU to address within 15 days of the receipt of such communication, and board needs to revert about final decision within 30 days of the receipt of explanation from IU. ठीक है, and you need to apply for renewal 6 months before the expiry of registration. ठीक है, and then you have to seek the prior approval of the board. किस किस चीज में, पहला, if a person wants to hold more than 5% of the share capital, if there is a change in control, if there is merger and acquisition, if there is sale or disposal of whole or major part of its undertaking, voluntary liquidation or discontinuance of business. ठीक है, then you have to intimate the board if any person holding more than 5% ceases to hold this share capital within 15 days, you have to communicate to the board. ठीक है, if board is satisfied that applicant is a fit and proper person and proposed company may meet all requirement, it may grant a period of grant for a period of 1 year in principal approval. ठीक है, अमेंडमेंट के लिए सेम प्रोसीजर है, 75% ऑफ द अप्रूवल ऑफ द गवर्निंग बॉडी। ठीक है, रेजोल्यूशन टू बी फाइल्ड विद द बोर्ड विद इन 7 days ऑफ इट्स अप्रूवल, अमेंडमेंट shall come into effect on 7th day of the receipt of approval, and you need to file the amended bylaws in printed form to the board within 15 days। अब आप आईयू और आईपीए को पढ़ोगे ना तो देखो सेम सेम प्रोसीजर, एक को पढ़ लोगे दूसरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था आईपी, आईपीए और आईयू के भी बारे में थोड़ा थोड़ा, है ना, जितना हमें मिनिमम चाहिए। अब आईपीई के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आईपीई के बारे में क्या है,
देखो पहले क्या होता था, आईपीई के लिए ना एक रिकॉग्निशन का प्रोसीजर था। अभी क्या हो गया, अभी हो गया रजिस्ट्रेशन। अब आईपीई का भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, आईपीई भी रजिस्टर करा सकती है अपने आप। एक तो एनी कंपनी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म या एलएलपी। तो कौन आईपीई बना सकते हैं, कोई कंपनी बना सकती है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म या एलएलपी विद मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 1 करोड़ रुपीज। तो इसके लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी चाहिए, 1 करोड़। majority of directors, partners, shareholders, whole time directors are IP। ठीक है, इसमें क्या है, जो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स है, पार्टनर्स है या शेयर होल्डर्स है या होल टाइम डायरेक्टर्स है, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होने चाहिए। एंड दे शुड नॉट बी ए पार्टनर और डायरेक्टर इन एनी अदर आईपीई। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हमारे सीए फर्म में तो होता है ना, कि एक सीए 4 फर्म में भी पार्टनर हो सकता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा फर्म में आप पार्टनर या डायरेक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, देन यू टू मेक एप्लीकेशन इन फॉर्म सी। फॉर्म सी में आपको अप्लाई करना है विद 50,000 फीस, एंड बोर्ड में ग्रांट सर्टिफिकेट इन फॉर्म डी। ठीक है, एंड देन यू टू इन्फॉर्म द बोर्ड विद इन 7 days इफ एनी पार्टनर और डायरेक्टर ceases टू बी ए पार्टनर और डायरेक्टर और ज्वाइंस इन एज डायरेक्टर और पार्टनर। ठीक है, तो आपको 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना। ये हो गया हमारा दिस रजिस्ट्रेशन ऑफ आईपीई। ठीक है, और अगर कोई डिले होगा तो डिले के केस में आपको सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 12%। तो बोर्ड कैन डी रिकॉग्नाइज बाई रीजन ऑर्डर, एंड एनी आईपीई रिकॉग्नाइज्ड एज ऑन 31st March shall submit form H by 31st December for the financial year 18-19, and you need to submit copy of financial statement as on the date of net worth certificate along with form C। ये कुछ रेगुलेशंस हैं, और रेगुलेशंस के साथ में हमने फिर फॉर्म नंबर भी दे दिया इसका, कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फॉर्म ए है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, देखो ऐसा है ना, क्योंकि क्या हुआ है कि हमारे ना कोड में तो अमेंडमेंट हुआ नहीं, अब आया बिल, है ना, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन पहला जो था, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो अगस्त 21 के बाद कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था, तो वहां इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का ही कॉन्सेप्ट था। अब क्या कर दिया, क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी को क्या था, रिकॉग्निशन था, रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो अब रजिस्ट्रेशन भी अलाउ कर दिया। जब रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया, कोड में कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं, तो रेगुलेशंस में ले आए ये। रेगुलेशन में क्या ले आए कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक एंटिटी भी हो सकती है, तो उन्होंने इस तरह से कवर कर लिया इसको। ठीक है, तो फॉर्म डबल ए है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। बी में फिर क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। सी में एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन, क्योंकि वो पुराने वाले फॉर्म भी चल रहे हैं ना, पुराने रिडंडेंट तो किए नहीं। डी में क्या है, डी में सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिल रहा है। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल फीस फॉर्म ई के अंदर है। फॉर्म एफ में इंफॉर्मेशन ऑफ सेसेशन और ज्वाइनिंग ऑफ ए पार्टनर डायरेक्टर। जी में एनुअल स्टेटमेंट है ऑफ टर्नओवर, और एच में कंप्लायंस सर्टिफिकेट। ये कुछ फॉर्म्स। सर तो अब जैसे रजिस्ट्रेशन खुल गया तो अब रिकॉग्निशन के लिए करने की जरूरत नहीं है। ना ना ना, अब नहीं, अब तो नहीं ना, वो तो एक वो ही पहले, चीज हाँ होगी। हाँ, वो तो पहले वाला ही थे ना, पहले ही था प्रोसीजर ही। जी। अब क्या हो गया, अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक आईपीई भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकती है। तो अब उन्होंने रजिस्टर, भाई बोर्ड को भी तो फीस चाहिए ना, पहले रिकॉग्निशन में फीस फीस नहीं होती थी, अब क्या है, प्रॉपर फीस लेते हैं, ये है। हम्म। अब हम चलते हैं ग्रीवांस, इंस्पेक्शन और कंप्लेंट के ऊपर। ठीक है, तो पहले तो ग्रीवांस और कंप्लेंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस पढ़ लेते हैं कि ग्रीवांस क्या है और अपना कंप्लेंट क्या है। देखो, सबसे पहले तो ग्रीवांस और कंप्लेंट में हमें ये पढ़ना है कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, ग्रीवेंस का मतलब ये है कि कुछ ऐसा एक्शन किया है आईपी ने या किसी भी स्टेक होल्डर ने, इसमें सफरिंग हुई है बाय ए स्टेक होल्डर। और कंप्लेंट में क्या है, देयर इज ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। कोई जरूरी नहीं कि उसको सफरिंग हुई हो,
ठीक है। कंप्लेंट में क्या है, कंप्लेंट का मतलब देयर इज अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, और ग्रीवांस में क्या है कि सफरिंग भी है, ये फर्क है मेन। ग्रीवांस में कोई फीस पेबल नहीं है, कंप्लेंट के अंदर 2500 की फीस है, और अगर बाद में पाया जाता है कि इट वाज नॉट ए फ्रिवोलस एप्लीकेशन तो ये रिफंड भी कर देते हैं। ठीक है। फॉर्म फॉर्म ए है फॉर कंप्लेंट, और टाइमलाइन कितनी है, विद इन 45 डेज ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, और डिले कंडोन हो सकता है अप टू 30 डेज का। मोड ऑफ फाइलिंग क्या है, ऑनलाइन और बाय पोस्ट और बाय हैंड। डिस्पोजल हैज टू बी डन विद इन 30 डेज। और क्या कंप्लेनेंट रिक्वेस्ट कर सकता है बोर्ड को टू रिव्यू द डिसीजन, ग्रीवांस में नहीं कर सकता, कंप्लेंट में कर सकता है विद इन 30 डेज। एंड बोर्ड टू डिस्पोज ऑफ द रिव्यू इन केस ऑफ कंप्लेंट विद इन 30 डेज ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू। और इफेक्ट क्या होगा, डायरेक्शन देंगे टू सर्विस प्रोवाइडर फॉर रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंस। ठीक है। और इस केस में, कंप्लेंट के केस में क्या करते हैं, दे में ऑर्डर इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन और इशू ए शो कॉज नोटिस। अब हम कंप्लेंट को पढ़ लेते हैं। ये हमारा कंप्लेंट। ठीक है। तो एक हमने चार्ट दे रखा है इसमें कि कितनी कितनी देर में क्या करना है, ये सारा आप एक बार इसको देख लीजिए। इंस्पेक्शन से रिलेटेड कुछ कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं, है ना। देखो एक बात आप ध्यान में रखो कि इसके ऊपर हमारे को केस स्टडी नहीं आनी है ना। तो एक एक नंबर के सवाल आने हैं। अब एक एक नंबर में वो जो सवाल पूछेगा तो उस हिसाब से तैयारी करनी है। और हमने ऑनलाइन टेस्ट भी आपको दे रखे हैं पार्ट 4 के, वो भी जरूर कर लीजिए, मैं दोबारा भी डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन को समझते हैं कि इंस्पेक्शन क्या होता है और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। देखो ऐसा होता है, इंस्पेक्शन जो है ना, इट कुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ए कंप्लेंट और इट कुड बी ऑन सो मोटो ऑल्सो। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली इज प्रिसीडेड बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन है 217 में और इन्वेस्टिगेशन है 218 में। पहले हम इंस्पेक्शन को पढ़ लेते हैं। इंस्पेक्शन का पर्पस क्या है, इंस्पेक्शन का पर्पस ये है कि भाई अब इंस्पेक्शन किसका हो सकता है। पहले क्या था, इंस्पेक्शन के ना अलग अलग रेगुलेशंस थे, जैसे आईपी का अलग, आईपीए का अलग, आईयू का अलग। अब उन्होंने क्या किया, एक ही जगह इंस्पेक्शन के रेगुलेशंस दे दिए। भाई कंट्रोल ही करना है ना, इंस्पेक्शन करना है, चाहे आईपी का हो, चाहे आईपीए का हो, चाहे आईपीई का हो, चाहे आईयू का हो, है ना। तो किसी का भी वो सबके लिए सेम प्रोसीजर कर दिया उन्होंने इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन के लिए। पहले क्या था, अलग अलग पढ़ना पड़ता था सारा, अब क्या कर दिया, एक ही कर दिया, वहां से निकाल करके आपको एक ही जगह। इंस्पेक्शन कौन करता है, इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी, मतलब एक इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी बना देते हैं और वो इंस्पेक्ट करती है। और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या मेंटेन करनी है, यस, कॉन्फिडेंशियलिटी हैज टू बी मेंटेन। नॉर्मली क्या होता है, इंस्पेक्शन स्टार्ट करने से पहले 10 दिन का नोटिस देते हैं कि भाई हम आपके यहाँ इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं। जैसे मान लो कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है ना, अब उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट मिल गई, भाई ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, या फिर सो मोटो भी करते हैं, या फिर वो कुछ टेस्ट बेसिस पर भी करते हैं। हर साल उन्होंने इतने तो इंस्पेक्शन करने ही करने हैं, है ना, उनका भी टारगेट रहता है। तो इस तरह से, और नॉर्मली वो क्या करेंगे, आपको ईमेल भेजेंगे कि भैया अपना रिकॉर्ड तैयार रखो 10 दिन पहले, लेकिन इट में बी डिस्पैच्ड विद ऑल्सो। अगर उनको लगता है भाई ये कुछ गड़बड़ करेगा तो फिर क्या है कि ये दिस नोटिस में भी, दिस रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस में भी डिस्पैच्ड विद ऑल्सो। अब इंटरिम रिपोर्ट, इसमें ना दो टाइप की रिपोर्ट होती है, इंटरिम और फाइनल। अब इंटरिम रिपोर्ट की बात क्या है, अगर इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड तो इंस्पेक्शन के केस में इंटरिम रिपोर्ट दी जाएगी। फिर इसके बाद बनती है ड्राफ्ट रिपोर्ट। ड्राफ्ट रिपोर्ट क्या है, ड्राफ्ट रिपोर्ट होती है फाइनल रिपोर्ट से पहले, क्योंकि आपको सर्विस प्रोवाइडर का आपने इंस्पेक्शन किया है तो उसको भी तो बोलने का मौका देना चाहिए ना। तो ड्राफ्ट रिपोर्ट की कॉपी सर्विस प्रोवाइडर को भी देते हैं और बोर्ड को भी देते हैं, लेकिन इंस्पेक्शन के केस में ड्राफ्ट रिपोर्ट की कॉपी सर्विस प्रोवाइडर को नहीं देते। ठीक है ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सीरियस ऑफेंस है, उसमें सिर्फ बोर्ड को देते हैं। और फाइनल रिपोर्ट क्या होती है, इंस्पेक्शन के केस में इट इज इशूड आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द कमेंट्स फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर एंड द बोर्ड। ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या होगा, जब इंस्पेक्शन हो गया आपका तो इंस्पेक्शन के बाद में मैटर में बी रेफर टू डिसिप्लिनरी कमेटी। ठीक है, या तो इंटरिम रिपोर्ट के बेसिस पे भी हो सकता है या फिर इन्वेस्टिगेशन के बेसिस।
और इसके पास पावर है टू एग्जामिन द रिकॉर्ड्स। ठीक, ये तो हो गया हमारा इंस्पेक्शन। इन्वेस्टिगेशन में क्या है? इन्वेस्टिगेशन इज मोर सीरियस। नॉर्मली इट इज प्रिसीडेड बाय इंस्पेक्शन, ये लेकिन कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो सकता है। अब मान लो कोई रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया है ना, या कुछ और इस टाइप का सीरियस ऑफेंस है, तो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली भी स्टार्ट हो सकता है अंडर सेक्शन 218। और पर्पस क्या है? टू इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स रिसीव्ड। और इसमें क्या करते हैं, एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्रिएट करते हैं, है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी हैज टू बी मेंटेन्ड। नॉर्मली नोटिस ऑफ 10 days इज गिवन बिफोर स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, बट दिस मे बी डिस्पेंस्ड विद ऑल्सो, है ना। इंटरिम रिपोर्ट टू द बोर्ड। इंटरिम रिपोर्ट की जहां तक बात है, तो ये जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, या ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द बोर्ड दे में गिव। ठीक है। ड्राफ्ट रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन के केस में सर्विस प्रोवाइडर को नहीं देते, सिर्फ बोर्ड को देते हैं। फाइनल रिपोर्ट कैसे करेंगे? आफ्टर एडवाइस फ्रॉम द बोर्ड। और इसका इफेक्ट क्या होगा इन्वेस्टिगेशन का? तो ये शो कॉज नोटिस में भी इशूड अंडर सेक्शन 220 और 236। और रिकॉर्ड्स के बारे में, जो इंस्पेक्शन है उस केस में एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स ले जाने का अधिकार नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में क्या है? दे कैन टेक द रिकॉर्ड्स अप टू 6 months, और दे में सीज ऑल्सो विद द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। और अगर कोई इस पे रेजिस्टेंस है तो दे में टेक असिस्टेंस ऑफ पुलिस ऑल्सो। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। वोटिंग के बारे में कई बार पूछा जाता है। तो वोटिंग में भी जैसे क्या है कि कुछ कुछ परसेंटेजेस हैं, अलग अलग परसेंटेजेस इस चार्ट में दे रखे हैं। विड्रॉल के लिए हमें मालूम ही है 90% है। अप्रूवल ऑफ टाइम एक्सटेंशन 66 है। अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी 66 है। रिप्लेसमेंट 66 है ना। अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान 66। डिसीजन टू लिक्विडेट। लेकिन फास्ट ट्रैक एक्सटेंशन में 75% है, क्योंकि फास्ट ट्रैक का अमेंडमेंट नहीं आया, है ना। और रिप्लेसमेंट ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी बाय सीओसी, इसमें भी 75%। तो ये वोटिंग की कुछ परसेंटेजेस हैं, ये हमें ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा अगर कोई डिसीजन कहीं नहीं लिखा है, तो जो नॉर्मल डिसीजन है नॉट लेस देन 51% मेजोरिटी, है ना। ये सेक्शन 21 में लिखा, तो सेक्शन भी इसके साथ में लिख दिया है। ये जो बैंक्रप्सी प्रोसेस है, तो बैंक्रप्सी प्रोसेस में एप्लीकेशन क्या होगी, क्लेम्स क्या होंगे, ये सारा यहां पर दे रखा है। तो प्राइवेट सेल कब हो सकती है? इनकेस गुड्स आर पेरिशेबल, वैल्यूज लाइकली टू डिटीरियोरेट। तो अगर आप इसको भी पढ़ लोगे ना, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। वैल्यू आउटस्टैंडिंग मोर देन द रिजर्व प्राइस ऑफ ए फेल्ड ऑक्शन। ठीक है। फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट परचेज द एसेट: बैंक्रप्सी ट्रस्टी, पार्टनर, डायरेक्टर ऑफ आईपी, प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय द बीटी, creditor or associate of the bankrupt, any company where the bankrupt or creditor is a director. ये पेनल्टी का चार्ट है फॉर दिस इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी। ये चार्ट मैंने अलग से भी दे रखा है आपको। ठीक है। उसके अलावा ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर सीडी, तो इसमें ये भी कुछ पेनल्टीज से रिलेटेड चार्ट्स। ये पीपीआईआरपी में कौन कौन से फॉर्म्स हैं, है ना। तो फॉर्म P1 टू P14 है। और उसके अलावा सेक्शंस हैं 54A टू 54O, है ना। ओ पी, पी है मेरे ख्याल, ओ है पी है, जो भी है। पीपीआईआरपी तो हम अलग से डिस्कस करेंगे, ट्यूसडे को क्लास ले लेंगे पीपीआईआरपी की। पीपीआईआरपी हमारा पेंडिंग है ना। मैं तब तक आपसे के वो अपना रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। ये डेट्स वाला चार्ट है कुछ, है ना। तो इसमें आप
डेट्स देख सकते हैं। आप इस चार्ट का ना प्रिंट आउट भी निकाल के कहीं पे आप अपने रूम में भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। कोई भी वो जो है अपना फोटोस्टेट वाला, बढ़िया फोटोस्टेट वाला, इसको बढ़िया A3 साइज पे निकाल देगा और इसको आप अपने हिसाब से आते जाते देख लिया चार्ट को। ये ड्यूटी है आरपी की, COC एंड लिक्विडेशन। एडजुडिकेशन So those in red are the changed ones, sir. है। Those in red, red में लाल वाले हैं. हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Those are the changed ones हाँ जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। from last to this year. हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ जी हाँ। Right, sir. थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इनको। Yes, sir. हाँ, ये फॉर्म्स दे रखे हैं हमने, है ना। तो सारे डिफरेंट प्रोसेसेस के फॉर्म्स हैं। उसके अलावा ये फिर क्लेम्स के लिए। उसके बाद में एक और भी मैं चार्ट आपसे वो भी शेयर किया था, CIRP वाला चार्ट भी। ये क्या किया था मैंने, इसको अलग से चार्ट बना दिया था एक। तो ये एक मिनट, ये मैंने ये तो इस चार्ट में हमने क्या किया कि CIRP, PPIRP और फास्ट ट्रैक, इन तीनों को ले लिया। भाई वो जो बड़ा चार्ट है उसमें तो सारे ले रखे हैं, लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन वगैरह, है ना। तो इस तरह से भी आप CIRP प्रोसेस को अगर आप पढ़ना चाहो तो इस यहां से पढ़ सकते हो। फिर ये PPIRP का है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। देखो इसको दो चार बारी आप पढ़ोगे ना तो कुछ ना कुछ आपको फायदा हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं। अब एक बार क्या करते हैं, एक बार ना कोड पर चलते हैं, ठीक है। तो कोड से आपको आइडिया हो जाएगा भाई पढ़ना क्या क्या है ना। ये तो एक आपको ट्रेलर दिखा दिया भाई, इस तरह से आप इसमें से कर लो, ठीक है। लेकिन सिलेबस में क्या क्या है वो भी देखना जरूरी है। मैं अभी शेयर करता हूँ, एक मिनट। तो ये हमारा कोड है जी, ठीक है। ये नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर। अब इसमें ये है कि पढ़ना क्या क्या है। भाई सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। IBPI से स्टार्ट होता है ये। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड पढ़ना है फिर आपको। उसके बाद में एक तो है आपके एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस। देखो इसमें ना दो रेगुलेशंस हैं, एक तो है एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस और एक है फिर जो गवर्निंग बोर्ड है ना उनके लिए रेगुलेशंस, ठीक है। फिर ग्रीवांस एंड कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर है। इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशंस है, मोटा मोटा हमने कवर कर लिया, है ना। उसके बाद में एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स एंड कंसल्टेंट्स रेगुलेशंस हैं। फिर इंसॉल्वेंसी प्रोविजनल एजेंसीज। फिर मॉडल बायलॉज। मॉडल बायलॉज के बाद में फिर ये आपका आ गया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज रेगुलेशंस। फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स,
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के बाद में आपके आ गए इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज के बाद में इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रेगुलेशंस, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये तो खैर फिर वो मिसलेनियस में आ गया, है ना। तो ये है बेसिकली। उसके अलावा सैलरी अलाउंसेस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, मतलब इसमें दो तरह की है। एक तो है, इसके ऊपर कई बार सवाल पूछ लेता है, अभी अभी हम लोग कर लेंगे 10-15 मिनट में इसको भी। सैलरी अलाउंसेस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स क्या क्या होने। फिर प्रोसीजर फॉर गवर्निंग बोर्ड मीटिंग्स है, रजिस्टर्ड वैल्यूएट्स एंड वैल्यूएशन रूल्स है, एडवाइजरी कमेटी रेगुलेशंस है और आईपीए रेगुलेशंस, है ना। तो इतना सारा आपको पढ़ना है जो आपका पार्ट 4 के अंदर है, ठीक है। लेकिन आपको लगे भाई ये तो बहुत ज्यादा है, हम नहीं पढ़ सकते इतना, तो कम से कम जो चार्ट है वो तो आपको बाय हार्ट जरूर याद होना चाहिए। कम से कम अगर चार्ट में से सवाल आए तो फिर ये ना हो उसमें गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। तो बोर्ड से रिलेटेड प्रोविजंस हमारे हैं 529 से 536 तक। एक तो ये पढ़ लेंगे हम, और उसके बाद में फिर हम ये पढ़ लेंगे सैलरी अलाउंसेस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। ये है आपका 1066 से लेकर के 1069 तक, या और भी आगे पढ़ लेंगे, 177 तक पढ़ लेंगे इसको, अभी टाइम है बहुत अपने पास, ठीक है जी। तो चलिए, पहले हम बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस पढ़ लेते हैं कि भाई बोर्ड क्या होता है। मेरे ख्याल 529 पे है। ये है जी सेक्शन 188, ठीक है। तो सेक्शन 188 से शुरू होता है, 187 तक हमने कवर कर लिया था। 188 क्या बोलता है, और इसके साथ में आपको पढ़ना क्या है वो भी मैंने लिख दिया है इसमें। प्रोसीजर फॉर गवर्निंग बोर्ड मीटिंग्स, एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे वहां पहुंच जाओगे सीधे। मैंने कितना आसान कर दिया आपके लिए, ये देख लो। बहुत मेहनत लगती है इस कामों में, इसको इससे साथ एंगेज करो, ये करो वो करो, चाहे स्टाफ को ही बोलना हो, बट स्टाफ भी लगा तो रहता ही है ना इस काम में। एक बंदा आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहता है, वो इसी काम को करता रहता है, ये पीपीटी बनाना, ये करना वो करना। 188 एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोर्ड क्या कहता है 188, विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड ए बोर्ड बाय द नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ, ठीक है। ये बोर्ड लिखा है, ये बोर्ड का मतलब बोर्ड एक ही हो सकता है, बोर्ड एक से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर बॉडी कॉर्पोरेट होगा बाय द नेम ऑफ फोरसेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील विद पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल एंड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड शेल बाय द सेड नेम सू और बी सूड, ठीक है। हेड ऑफिस कहां पर होगा, एनसीआर में। और एनसीआर का क्या मतलब है, एनसीआर का मतलब ये है कि जो क्लॉज है ऑफ सेक्शन 2 ऑफ नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड में अंदर लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड में क्या कौन कौन होंगे। द बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, कौन कौन से मेंबर होंगे। एक होगा चेयरपर्सन, 3 मेंबर होंगे फ्रॉम अमंग्स द ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट, ठीक है। वन इज टू रिप्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये तीनों जो है ना ये एक्स ऑफिशियो होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है कि वो अपनी पेरेंट बॉडी में अपना ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं, है ना, लेकिन यहां पर भी मेंबर है, सैलरी उनकी वहीं से मिलती है, ठीक है। एंड 1 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक्स ऑफिशियो होगा। एक्स ऑफिशियो में क्या होता है, मान लो उन्होंने कह दिया भाई रिजर्व बैंक का ये फलाना ऑफिसर जो है, बाय डेजिग्नेशन होती है चीजें, ये एक्स ऑफिशियो होगा। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब अगर मान लो वो रिटायर हो जाए तो फिर जो नया आएगा उसकी जगह वो बन जाएगा, ये मतलब, ठीक है। तो सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग दैट पर्टिकुलर पोजीशन और दैट पर्टिकुलर ऑफिस ही विल बिकम ए मेंबर ऑफ आईबीपीआई, ठीक है। उसके बाद 5 other members टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ whom एटलीस्ट 3 शैल बी होल टाइम मेंबर्स, ठीक है। तो कैसे कैसे होंगे, एक होगा चेयरपर्सन, 3 मेंबर होंगे कहां कहां के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, और फिर एक मेंबर नॉमिनेट होगा आरबीआई से,
और 5 मेंबर होंगे, जिसमें से 3 कम से कम होल टाइम मेंबर। चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स shall be persons of ability, integrity, and standing who have shown capacity in dealing with problems relating to insolvency or bankruptcy and have special knowledge and experience in the field of law, finance, economics, accountancy, or administration. ठीक है. The appointment of the chairperson and the members of the board, other than the appointment of an ex officio member under this section, shall be made after obtaining the recommendations of a selection committee consisting of. ठीक है. जो चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट है या जो मेंबर्स ऑफ द बोर्ड की अपॉइंटमेंट है, अदर देन द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स ऑफिशियो के तो उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से हो जाएगी. ठीक है. तो चेयरपर्सन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी? इसमें एक तो एक कमेटी बनेगी, सिलेक्शन कमेटी. सिलेक्शन कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी. ठीक है. सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मेंबर होगा उस कमेटी का. ठीक है. एक होगा चेयरपर्सन ऑफ आईबीबीआई इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड. भाई एक तो मेंबर्स का सिलेक्शन होना बोर्ड के, एक चेयरमैन का सिलेक्शन होना है ना. तो चेयरमैन के लिए तो अलग है, चेयरमैन तो नॉमिनेट हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, है ना. एंड 3 एक्सपर्ट्स ऑफ रिप्यूट फ्रॉम द फील्ड ऑफ फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, इंसॉल्वेंसी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मेंबर्स. तो ये सिलेक्शन कमेटी बन गई. ये सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी? ये अपॉइंटमेंट करेगी किसका? चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ द बोर्ड का. The term of office of the chairperson and members other than ex officio shall be 5 years or till they attain the age of 65 years, whichever is earlier, and they shall be eligible for reappointment. और जो सैलरी एंड अलाउंसेस हैं पेबल टू एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स अदर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. तो इसके लिए सैलरी के लिए रेगुलेशन है आपके पास, रेगुलेशन 1 to 20. तो एक बार रेगुलेशन पर भी क्लिक कर देते हैं, देख लेते हैं क्या है. ये है सैलरी के लिए रेगुलेशन. ठीक है. क्या कहते हैं ये? तो एक बार रेगुलेशंस पर चलते हैं. ये आपके हैं जी. सबसे पहले तो टर्म्स एंड कंडीशंस. ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है इसकी? चेयरपर्सन एंड द होल टाइम मेंबर shall be a person who shall not have any financial or other interests as are likely to affect prejudicially his function as such chairperson or member. ठीक है भाई. एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. The chairperson and whole time member appointed to fill up a casual vacancy shall hold office for the remainder period of the term of the chairperson or the case may be whole time member in whose place he is appointed. कई बार क्या होता है, कोई कैजुअल वैकेंसी हो सकती है, डेथ हो सकती है, रेजिग्नेशन हो सकता है ना, रिमूवल हो सकता है, तो फिर नेक्स्ट टाइम तक होल्ड करेगा, है ना. चेयरपर्सन एंड होल टाइम मेंबर शेल नॉट एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 year from the date of debiting the office in the board except with the previous sanction of the central government. मतलब ये चेयरपर्सन और होल टाइम मेंबर मतलब जब यहां से रिटायर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि टर्म इनका 5 साल का है या 65 ईयर्स है, विच एवर इज अर्लियर, तो 1 साल तक ये जो है ये कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते. भाई ऐसा नहीं ना किसी कंपनी की CIR पे चल रही उसी में जाके बन जाए डायरेक्टर, ये इसलिए 1 साल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. पे कितनी होगी? द चेयरपर्सन शैल हैव एन ऑप्शन टू रिसीव पे एज एडमिसिबल टू ए सेक्रेटरी और ए कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ 5,62,500 पर मंथ. ठीक है, ये सैलरी. और जो होल टाइम मेंबर है shall have an option to receive pay as admissible to an additional secretary to the government or a consolidated salary of 5 lakh per month. तो उसके लिए 5,62,500 पर मंथ है चेयरपर्सन के लिए और होल टाइम मेंबर्स के लिए 5 लाख पर मंथ. ठीक है. ये भी कोई ज्यादा पुराना नहीं है, थोड़ी ये मेरे ख्याल जनवरी फरवरी में अमेंडमेंट हुई है. इन केस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ ए पर्सन एज द चेयरपर्सन और होल टाइम मेंबर शैल हैव एन ऑप्शन टू, इनको ना 2 ऑप्शन देते हैं कि भाई या तो सैलरी ले लो विच इज एडमिसिबल टू सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी. मतलब चेयरपर्सन को कहते हैं या तो सेक्रेटरी का जो पे स्केल है वो ले लो या फिर ये कंसोलिडेटेड पे ले लो. ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन ले लो. रिस्पेक्टिवली हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस अंडर द
central government or the state government, and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefit by way of pension, gratuity, employer's contribution, or other funds, the pay and allowances of such chairperson or member, as the case may be, shall be reduced by gross amount of pension and pension equivalent of gratuity or employer's contribution or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him. मान लो उसको पेंशन भी मिल रही है ना, जैसे चेयरपर्सन है, उसकी सैलरी पर मंथ है 5,62,500 पर मंथ, 2 साल 2 लाख की मान लो उसको पहले से पेंशन मिल रही है, तो यहाँ उसको 2 लाख कम करके मिल जाएगी मतलब। ठीक है, फिर डीए क्या मिलेगा? डीए मिलेगा जो एडमिसिबल है टू सेक्रेटरी आर एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है, और एट द रेट्स एडमिसिबल टू ग्रुप ए। देखो आपको मिनिमम क्या क्या याद रखना चाहिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले चेयरपर्सन की सैलरी तो जरूर याद होनी चाहिए, 5,62,500। ठीक है, होल टाइम मेंबर की सैलरी याद होनी चाहिए 5 लाख पर। उसके बाद में इनको मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, याद होना चाहिए कि चेयरपर्सन एंड ए होल टाइम मेंबर, आप ना इस पे मार्क कर लेना कि भाई ये चीजें तो जरूर याद होनी चाहिए। शैल बी एंटाइटल्ड टू एंटरटेनमेंट अलाउंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 6,000 पर मंथ। फिर लीव कितनी मिलेगी? लीव लोग जनरली पूछते नहीं है ना, पूछना चाहे किसी का सन की हो तो कुछ भी पूछ सकता है, बट वैसे जनरली पूछते नहीं। कुछ कुछ चीजें वैसे भी याद रहती हैं, अर्ड लीव हमें ध्यान नहीं per है। annum, sir. क्या? हाँ पर यस। Okay. लीव है हमारी, लीव अर्न लीव मिलती है एट द रेट ऑफ 30 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड कैलेंडर ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस, वेस्ट है। लीव ट्रेवल कंसेशन, एकोमोडेशन, कन्वेंस। कन्वेंस में क्या है? स्टाफ कार मिलती है ना, और इसमें ये भी है कि नो पैसेंजर व्हीकल शैल बी परचेज्ड बाय द बोर्ड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीकल शैल बी मेट बाय हायरिंग। बोर्ड अपने लिए कोई व्हीकल परचेज नहीं करता एज ए सेट, है ना, हायरिंग से ही करते हैं। बोनस मिलेगा नहीं इनको, सिटिंग फीस मिलेगी नहीं, है ना, क्योंकि सैलरी मिल रही है ना। अब पार्ट टाइम मेंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। पार्ट टाइम में क्या है? इनका पीरियड है 3 साल, जैसे ओल्ड टाइम मेंबर्स का पीरियड कितना है? 5 साल, इनका पीरियड है 3 years। ठीक है, ए पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंटेड टू फिल अप ए कैजुअल वैकेंसी, वो रिमाइंडर पीरियड के लिए होगा नेचुरली, है ना। ये हो गया। उसके बाद में ये फीस एंड अलाउंसेस, इसके बारे में पूछ सकता है कि पार्ट टाइम मेंबर जो है उसके फीस एंड अलाउंसेस कितने होंगे। तो ये है इसका, आपको मिलेगा 6,000 रुपीज पर मीटिंग। ठीक है, और पार्ट टाइम मेंबर while on tour including the journey undertaken to attend a meeting shall also be entitled to traveling allowance। उसके बाद में ये भी पढ़ लेते हैं हम कि ये गवर्निंग बोर्ड मीटिंग के लिए कुछ आपके रेगुलेशंस, ये क्या कहते हैं कि बोर्ड की जो मीटिंग होगी वो कैसे होगी। तो इसको हम कहते हैं प्रोसीजर फॉर गवर्निंग बोर्ड मीटिंग रेगुलेशंस। ये रेगुलेशन भी हमारे को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। वैसे तो जो चार्ट है हमने मोटा मोटा उसमें दे दिया है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लेना है। ये चौथा रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है? वो कहता है देयर शैल बी एटलीस्ट 4 मीटिंग्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड। गवर्निंग बोर्ड किसका? बोर्ड का। ठीक है, इन ईयर एंड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन ईच क्वार्टर। Chairperson or in his absence any other member nominated by the chairperson in this behalf may convene the meetings of the governing board. Any 3 members may require the chairperson to convene a meeting of the governing board at any time, and the chairperson shall convene the meeting of the governing board accordingly. ठीक है, provided that if the chairperson is not available, any 3 members may require the secretary to convene the meeting of the governing board. ठीक है, meetings of the governing board shall be held at such places, times and places in India as may be specified in the notice convening the meeting. Meeting of the governing board shall ordinarily be held at its head office. ठीक है,
provided that the governing board may also hold meetings at its other offices or at any other place in India whenever, in the opinion of the governing board, it is expedient to do so. The chairperson, or if he is unable to attend the meetings of the governing board for any reason, any other member chosen by the members present at the meeting shall preside over the meeting. एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा. नोटिस कितना चाहिए? 10 दिन का. Not less than 10 days notice shall ordinarily be given for each meetings of the governing board. Provided that if an urgent meeting of the governing board is required, 10 days notice may be dispensed. ठीक है. No business other than that for which the meeting has been convened shall be transacted at a meeting of the governing board except with the permission of the chairperson. Quorum क्या है? Quorum में ये है कि अगर आपके member कितने हैं? If the board has less than 8 members, 5 members. 5 members है if the governing board has 8 or more member. अगर 8 या ज्यादा member है governing board में तो उसमें quorum कितना रहेगा? 5 का. और 3 रहेगा if the governing board has less than 8 members. Shall constitute the quorum. All businesses which come up before any meeting of the governing board shall be decided by a majority vote of the members present and voting. And in the event of an equality vote, the chairperson or in his absence the member presiding shall have a second or casting vote. ठीक है. बाकी मिनट्स वगैरह इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. Members not to participate in meetings in certain cases. जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है वो मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा. मान लो वो कंपनी में डायरेक्टर है, कुछ है ना. Every member who is directly or indirectly concerned or interested in any business concerning up for consideration at a meeting of the governing board shall, as soon as possible, after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest at such meeting, and such disclosure shall be recorded in the proceedings of the governing board, and the member shall not take part in any deliberation or decision of the governing board with respect to that business. ठीक है. और डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? Shall include any concern or interest of a member either by himself or through his relatives within the meaning of definition of section 2 subsection 77 of the Companies Act or by reason of being a partner or director of that concern. ठीक है. गिफ्ट के बारे में पूछ सकता है. एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स. ए होल्ड कई बार पूछता है ये सवाल. ए होल टाइम मेंबर shall not accept any gift by whatever name called to the extent possible from a regulated entity. A whole time member shall hand over the gift if he receives any and the value exceeds rupees 5,000 to the IBBI. पहले तो कहते हैं गिफ्ट एक्सेप्ट ही मत करो, लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा का कोई गिफ्ट है तो IBBI को हैंड ओवर. ठीक है. ये तो वैल्यूएशन रूल्स हैं. वैल्यूएशन रूल्स तो बाद में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं. पढ़ना तो ये भी है. अब हम दोबारा उसी पे चलते हैं अपने, है ना. 529. अभी तो टाइम है अपने पास. हम यहाँ पर थे, है ना. अब हम सेक्शन 189 हो गया हमारा. अब है सेक्शन 190. सेक्शन 190 क्या बोलता है? सेक्शन 190 बोलता है रिमूवल ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑफिस. द सेंट्रल गवर्नमेंट may remove a member from office if he is an undischarged bankrupt as defined under part 3, has become physically or mentally incapable of acting as a member, if he has been convicted of an offence which in the opinion of the central government involves moral turpitude, has so abused his position as to render his continuation in office detrimental to the public interest, provided that
No member shall be removed under clause D unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter. ठीक है, मतलब ये है कि डी के केस में क्या होगा, आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है। इसका मतलब ए बी और सी में कोई अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 191 पावर्स ऑफ चेयरपर्सन। Save as otherwise determined, the chairperson shall have power of general superintendence and direction of the affairs of the board and may also exercise such other powers as may be delegated to him by the board. ठीक है। फिर मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड में गवर्निंग बोर्ड मीटिंग रेगुलेशंस हैं, अभी अभी हमने देखे है ना, फोरम वगैरह के बारे में देख रहे थे ना, तो वो गवर्निंग बोर्ड मीटिंग रेगुलेशंस। The board shall meet at such times and places and observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meeting, including quorum at such meetings as may be determined by regulations. ठीक है। अगर चेयरपर्सन और इफ फॉर एनी रीजन चेयरपर्सन इज अनेबल टू अटेंड, देन एनी अदर मेंबर चोजन बाय द मेंबर्स प्रेजेंट शैल प्रिजाइड ओवर द मीटिंग। और जो भी डिसीजंस हैं दे शैल बी डिसाइड बाय मेजॉरिटी वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और अगर इक्वालिटी होगा तो चेयरपर्सन और इन हिज एब्सेंस द पर्सन रिप्रेजेंटिंग शैल हैव ए सेकंड और कास्टिंग। गवर्निंग बोर्ड मीटिंग रेगुलेशंस हमने देख ली है अभी, है ना। 193 मेंबर नॉट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स इन सर्टेन केसेस, तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो। 194 वैकेंसीज एटसेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड एंड ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द बोर्ड। No act or proceeding of the board shall be invalid merely by reason of any vacancy in or any defect in the constitution of the board or any defect in the appointment of a person acting as a member of the board। मतलब बेसिकली बात यह है, क्योंकि बोर्ड ने देखो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने हैं। अब कोई बोर्ड को चैलेंज कर दे कि भाई इसका तो अपॉइंटमेंट ही डिफेक्टिव है, तो इसलिए उन्होंने एक्ट में डाल दिया, है ना, कि भाई कोई भी प्रोसीडिंग है या कोई भी एक्ट ऑफ द बोर्ड है, ये सिर्फ इस वजह से इनवैलिड नहीं हो सकता अगर कोई डिफेक्ट था या कोई वैकेंसी थी, ठीक है, या कोई इरेगुलरिटी थी इन द प्रोसीजर ऑफ द बोर्ड नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। द बोर्ड में अपॉइंट सच अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज एज इट कंसिडर्स नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। तो इसमें क्या है, एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स के लिए रेगुलेशंस। ठीक है। फिर सैलरीज एंड अलाउंसेस पेएबल टू एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, इसके लिए एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस। ठीक है। तो इनको भी आप देखना चाहो तो थोड़ा बहुत देख लेना, वैसे इतना कोई खास है नहीं, है ना। उसके बाद में 195, तो मैंने लिंक दे दिया है, लिंक के अंदर यहां पर वो दे रखा। 195 में पावर टू डेजिग्नेट फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। तो अंटिल द बोर्ड इज एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डेजिग्नेट एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। ये हो गया हमारा 195 तक। उसके बाद में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड 196 क्या बोलता है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। भाई बोर्ड का काम क्या है, बोर्ड का काम तो बहुत सारा है ना। सबसे पहले तो रजिस्टर ही करना है, इसको किसको करना है, आईपी, आईपीए, आईयू एंड रिन्यू, विड्रॉल, सस्पेंड और कैंसिल सच रजिस्ट्रेशंस। उसके बाद में कुछ प्रमोशन ऑफ द डेवलपमेंट, ये इंसॉल्वेंसी के लिए काम करना, मिनिमम एलिजिबिलिटी, फीस और चार्जेस, फलाना ढिमकाना, ये आप देख सकते हो। ठीक है। 196 ये जनरल टाइप का है, इसमें कोई खास बात नहीं है। 197 में कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमिटी, एग्जीक्यूटिव कमिटी और अदर कमिटी। ठीक है। तो बोर्ड में फॉर द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस में कॉन्स्टिट्यूट एडवाइजरी एंड एग्जीक्यूटिव कमिटीज और सच अदर कमिटीज एज इट मे डीम फिट कंसिस्टिंग ऑफ ए चेयरपर्सन एंड सच अदर मेंबर्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। तो इसके लिए आपके पास एडवाइजरी कमिटी रेगुलेशंस। ठीक है। तो एक बार एडवाइजरी कमिटी रेगुलेशंस भी देख लेते हैं। ये क्या है, एडवाइजरी कमिटी रेगुलेशंस, ये है जी एडवाइजरी कमिटी रेगुलेशंस। ये कहता है द बोर्ड में बाय एन ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट एन एडवाइजरी कमिटी टू ऑब्टेन एक्सपर्ट एडवाइस ऑन इश्यूज रेलेवेंट फॉर द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस। और कौन कौन सी एडवाइजरी कमिटी हो सकती है, एक एडवाइजरी कमिटी हो सकती है ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है। फिर ऑन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन, ऑन इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, any other subject specific advisory committee as the board may consider expedient। कंपोजिशन क्या होगी,
कंपोजिशन होगी प्रोफेशनल मेंबर्स और जनरल मेंबर्स होंगे। रेशो क्या होगी? 2:1। ठीक है। नो पर्सन शैल बी ए मेंबर ऑफ मोर देन वन एडवाइजरी कमेटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और टर्म ऑफ मेंबर होगी शैल नॉट एक्सीड 3 years। मीटिंग्स कैसे होंगी? 50% ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ शैल कॉन्स्टिट्यूट द quorum, और सेक्रेटरी टू द एडवाइजरी कमेटी शैल कन्वीन मीटिंग्स। फीस इसमें मिलेगी 10,000 रुपीज फॉर ए मीटिंग ऑफ द कमेटी। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये भी हो गए। अब हम दोबारा चलते हैं अपना। तो इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इतनी कोई खास मुश्किल बात भी नहीं है। और ये प्रोफेशन बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो खाली हैं, जो नया कुछ करना चाहते हैं। जो पहले से ही बिजी हैं उनको मुश्किल हो जाती है ना, कि भाई पहले से आप बिजी हो तो फिर ये है कि इसको अब कुछ दिन तो कम से कम करना ही पड़ेगा। 10-15 दिन छोड़ छाड़ के इसी में लग जाना पड़ेगा। बाकी वैसे धीरे धीरे पढ़ते रहो, लेकिन लास्ट के 10-15 दिन एक्सक्लूसिव इसी पर, ऑफिस ऑफिस छोड़ छाड़ के तब होता है। Which one, sir? Last 15 days? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हो गया 198 पर आ गया। 198 क्या बोलता है? 198 में ये कंडोनेशन ऑफ डिले की पावर दे रखी है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड वेयर द बोर्ड डज नॉट परफॉर्म एनी एक्ट विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर दिस कोड। भाई बोर्ड के लिए भी तो पीरियड दिया हुआ है ना, कि भाई 10 days में रिवर्ट करेगा, 7 days में रिवर्ट करेगा। नहीं करता तो द रेलिवेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कंडोन द डिले। ठीक है, तो कंडोनेशन ऑफ डिले हो जाएगा अगर बोर्ड ने अपना कोई फंक्शन अपने टाइम में परफॉर्म नहीं किया। Sir, the relevant adjudicating authority would be whom, sir? NCLT? और नेचुरली एनसीएलटी या डीआरटी जो भी होगी। Right. हाँ, उसके बाद में ये एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस आ गए, है ना। एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस, इसमें एक दो बात इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो ये कि एम्प्लॉय कितना गिफ्ट रिसीव कर सकता है ना। ये ये जरूर पढ़ लेना, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। और कुछ पढ़ो मत पढ़ो इसमें, है ना। क्या कहता है? एम्प्लॉय के लिए अलग है कुछ, है ना। An employee shall not solicit or accept any gift or permit any member of his family or any person acting in his behalf to accept any gift from any person with whom the employee is likely to have official dealings, either directly or indirectly, or from any subordinate employee. Trivial gifts like small packet of sweets, diaries, calendars on the occasion of Diwali and New Year, or a casual meal, lift, or other social hospitality may, however, be exempted. ठीक है। गिफ्ट में क्या होगा? फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग और अदर सर्विस, और एनी अदर पेक्यूनरी एडवांटेज, unless it is provided by a near relative or a personal friend having no official dealings with the employee or with the board. On occasions such as marriages, anniversaries, funerals, or religious functions, where the making of gifts is in conformity with the prevailing religious or social practice, an employee may accept gifts from his personal friends, having no official dealings with the employee or with the board, but he shall report to the board within 30 days if the value of any of such gift exceeds 10,000। मतलब किसी से भी अगर 10,000 से ज्यादा गिफ्ट मिलेगी तो उसको बताना है। ठीक है, चाहे पर्सनल लेवल पे ही को गिफ्ट मिल रही। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताना है विद इन 30 days। बाकी ये सारे ना हमने उसमें कवर कर लिए क्वेश्चंस में। ये भी हो गया हमारा।
ग्रीवांस एंड कंप्लेंट हैंडलिंग रेगुलेशंस, ये भी मोटा मोटा हमने कवर कर लिया है ना, ग्रीवांस और कंप्लेंट वाला। डिस्पोजल ऑफ ग्रीवांस बाय द बोर्ड, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। The board may seek additional information and records from the aggrieved and information and records from the concerned service provider to decide if the grievance requires any redressal by the service provider. The aggrieved and the service provider shall submit the information and records sought within 7 days there, provided that additional time not exceeding 7 days may be granted. The board shall close the grievance within 30 days of its receipt if it does not require any redress. अगर कोई रिड्रेसल की जरूरत ही नहीं है तो फिर क्लोज कर देंगे विद इन 30 डेज। ठीक है। The board shall direct the service provider to redress the grievance within 30 days of its receipt if it requires any redress। ठीक है। Sir, the service providers will be IPA, IPE, IU, sir. सारे सर्विस प्रोवाइडर है, आईयू भी सर्विस प्रोवाइडर है, आईपीए भी है, आईपी भी है, आईपीई भी है, ऑल आर सर्विस प्रोवाइडर। डेफिनेशन दे रखी है ना, इसके रेगुलेशन में डेफिनेशन दे रखी है। Right, right, sir. हाँ, ये डेफिनेशन दे रखी है ना। एग्रीव्ड कौन है, एसोसिएटेड पर्सन कौन है ना। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, आईपीए, आईपी, आईपीई, आईयू। एसोसिएटेड पर्सन भी है यहाँ पर। एसोसिएटेड पर्सन मीन से पार्टनर, प्रोपराइटर, डायरेक्टर, ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ ए सर्विस प्रोवाइडर, a professional or a valuer engaged by service provider or any other person acting for or on behalf of a service provider। ठीक है। तो इसमें भी जितना आप हो थोड़ा सा देख लीजिएगा। और 2500 का फीस है और वो भी रिफंड हो जाता है। वेयर द बोर्ड इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कंप्लेंट इज नॉट फ्रिवोलस, तो इट शैल रिफंड द फीस ऑफ 2500 रिसीव्ड अंडर सब रेगुलेशन 3। ये फिर फॉर्म ये है। उसके बाद में इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशंस हैं, ये भी मोटा मोटा हमने कवर कर लिए हैं चार्ट के थ्रू, है ना। फिर भी आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो यहां से पढ़ लेना। एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स कोई खास बात नहीं है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो रेड में मार्क है ये रिसेंट अमेंडमेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज मोटा मोटा हमने सारा कवर कर लिया, इसमें जो भी था ना काम का वो हमने कवर कर लिया। चार्ट तो देखो जरूर आप ध्यान में रख लेना, बाकी जितना पढ़ लो उतना सही है, जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो। ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का है। अब एक्चुअली नेक्स्ट वीक हम 2 क्लास जरूर लेंगे। पहली क्लास होगी ये प्री पैक पर, ठीक है, और एक क्लास फिर हम लेंगे